Okay, so hello everyone. Welcome to Peace Beyond Borders, a youth led India Pakistan peace building initiative supported by the Davis Project for Peace. Through a podcast series, a short documentary, and a cross border climate action workshop, we are building spaces where young people from both countries listen, learn, and act together for a more peaceful, climate resilient future. I'm Ahmed Raza, a peace studies graduate from the National Defense University, Islamabad, and I work on conflict resolution, youth led peace building, and strategic communications for social impact. Together, me and Anya, we both are excited to bring you honest conversations that bridge borders. Over to you, Anya. And I'm Anya Agarwal. I'm an Erasmus Mundus scholar in Masters in Global Markets, Local Creativities. I did my bachelor's in history from Lady Shri Ram College, Delhi University, and I'm passionate about heritage, music, and the everyday practices that make peace possible. Today, our guest is Mr. Ravi Nitesh, who is a peace activist from Delhi and the founder of Mission Bharatiyam. Ravi sir is also one of the founding members of Aghaze Dosti, which means beginning of friendship, which is a youth-led India-Pakistan friendship initiative started in 2012. Aghaze Dosti was founded jointly. Aghaze Dosti has collaborated with different organizations from Pakistan over time, such as the Catalyst. And Ahmed, would you like to continue with the work which the organization has done? Yeah, sure. Thank you so much for the kind introduction, Anya. Yeah, wonderful. So, through peace education workshops and Indo-Pak letter and postcard exchanges between school children, peace calendars showing children's artwork, and cross-border dialogues, Mr. Ravi and his colleagues create everyday opportunities for friendship and mutual understanding. And let me tell you, in this episode, we'll talk about people to people peace building, creative exchange as a resistance to hostility, and simple projects that scale into social change. So let's dive in. Anya. टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन सर हम जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत और आप इस फील्ड में कैसे इस फील्ड में हमें ज़्यादा लोग ऐसे दिखते नहीं है जो एक्टिवली पार्ट लेना चाहते हैं दोनों कंट्रीज में जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से तो अगर आप अपने बैकग्राउंड से तो सबसे पहले थैंक यू सो मच अहमद एंड आन्या और बहुत बहुत शुक्रिया पीस बियॉन्ड बॉर्डर्स का कि वो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट सीरीज जो उसने शुरू की है। जहाँ तक बैकग्राउंड और कैसे ये काम शुरू हुआ इसकी बात तो थोड़ी सी लंबी है, फिर भी मैं कुछ शॉर्ट कर। ये कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। एक्चुअली भारत में उत्तर प्रदेश एक स्टेट है और उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न यूपी जो है वहाँ पे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बस्ती। तो बस्ती शहर में मेरा जन्म हुआ और जो मेरी शुरुआती पढ़ाई थी तो मैंने स्कूलिंग वहीं से करी और स्कूल टाइम से ही मैं क्यूरियस रहा और बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे मेरा ध्यान हमेशा बना रहा। मैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा। बचपन में अखबारों में चिट्ठियां लिखा करता था सोशल इश्यूज को ले। स्कूल की पार्लियामेंट में रहा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और ये चलते चलते जो है मुझे वाजपेयी जी, वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, वो भारत के प्रधानमंत्री, और उनकी एक किताब आई थी मेरी 51 कविताएं। और चूंकि वो एक हम लोग को पहले नहीं पता था कि वो पोएट है, लेकिन आफ्टर बीइंग प्राइम मिनिस्टर ये भी पता लगा कि वो एक पोएट। तो उनकी एक किताब आई, उसमें उन्होंने 51 पोएम्स अपनी जो है वो लिखी हुई थी, 51 पोएम्स। वो जब मैंने पढ़ी तो मुझे वैसे सारी पोएम अच्छी लगी, लेकिन उसमें से दो ऐसी पोएट्री थी जिसने मेरे ऊपर असर किया। एक पोएट्री थी जो हिरोशिमा के ऊपर थी, जिसमें वो कुछ ऐसे लिखते थे कि मतलब मैं रात को नींद से करवटें बदल के उठ जाता हूँ ये सोचते हुए कि हिरोशिमा पे जो एटम बम अणु अस्त्र गिरे होंगे उनको जिन वैज्ञानिकों ने बनाया होगा, क्या उनको हिरोशिमा पे वो गिरने के बाद से उन्होंने एक लिखी थी। तो उसने मेरे मन पे असर किया। जो दूसरी पोयम थी उसमें वो उन्होंने लिखी थी, भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, करें या वार करें दोनों को ही सहना है, कर चुके लड़ाई कितना महंगा सौदा, रूसी या अमेरिकी खून एक बहना है, जो हम पे गुजरी बच्चों के संग ना जंग ना होने दें। तो ये जो पोयम थी इसने भी मेरे मन पे असर किया। मतलब मुझे ये लगता रहा कि
मतलब ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग बीइंग स्टूडेंट इन स्कूल में जो हम सोचते थे वो वही है जो हमें सेकेंडरी सोर्सेस से हमेशा मिल। अनफॉर्चुनेटली 1999 में भी मैं बस्ती में ही था, और उस वक्त जो है वो कारगिल हुआ। तो जब कारगिल हुआ तो माहौल बिल्कुल एकदम बदल गया शहर का। मीडिया, जो अखबार आ रहे थे उसमें हम लोग फिर सब लोग अचानक से एकदम पैट्रियाटिक हो गए, और उसमें मैं भी हो गया पैट्रियाटिक। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हुआ, और मैं बिल्कुल एकदम ये सोच रहा था, मैं भी पैट्रियाटिक हुआ। और हमारे शहर में एक कवि सम्मेलन हुआ उस वक्त मैं शायद 12th में था, जहाँ तक मुझे याद है, या तो मैंने 12th पास कर रहा था या था, ऐसे कुछ था। हमारे शहर में एक कवि सम्मेलन हुआ जिसका नाम रखा गया एक शाम कारगिल के शहीदों के नाम। और वो हमारे यहाँ के एक मशहूर शायर हुआ करते थे, सलीम बस्तवी अजीजी। तो वो बस्ती के थे इसलिए वो बस्तवी लिखते थे, सलीम बस्तवी अजीजी, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था। और मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये कवि सम्मेलन हो रहा है तो मैं उनसे मिलने के लिए, मैं स्टूडेंट था, मैं उनसे मिलने गया। और मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में मैं भी कुछ सुनाना। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, ठीक है तुम आ जाओ। और मैं गया उस कवि सम्मेलन में कविता सुनाने के लिए, जहाँ सब बुजुर्ग शायर बैठे हुए थे मंच पे। 12th का स्टूडेंट भी गया अपनी पोएम्स। और मैंने, वो मेरी फर्स्ट पोएम थी जो मैंने लिखी, उसके पहले मैंने कभी पोएम नहीं लिखी थी। और वो बेसिकली वो पेट्रियाटिक पोएम थी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत पीस वो करके पोएम थी। और उसमें मैंने लिखा था, मैं चाहता हूँ एक खूबसूरत काम कर जाऊं, अगर शहीदों में मैं अपना नाम कर। तो से एक वो लंबी पोएम है, सुनाऊंगा। लेकिन वो बात यह है कि इस तरह से मेरे अंदर एक वो भी भाव आए, लेकिन साथ साथ में दिल में एक उथल पुथल चलती रही, बहुत सारे सवाल। और उस वक्त चूंकि इंटरनेट इतना आपको उपलब्ध नहीं होता था, सोशल मीडिया उपलब्ध नहीं होता, तो आपके पास इंफॉर्मेशन गैदर करने के सोर्स, तो दिल में जो सवाल थे वो दिल में ही रहे, वो चलते रहते थे। तो मैं हमेशा ये सोचता था, क्योंकि ये तो हमें भी पता था कि हजारों हजार साल अ, ये दोनों तरफ के जो लोग हैं वो एक साथ रहे हैं, एक संस्कृति का हिस्सा रहे, एक कल्चर रहा है उनका। आजादी के ये 60-70 सालों में ऐसा क्या हो गया कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए और 3 बार लड़ाई कर चुके, इतने सारे बॉर्डर स्क्रिप्शेस। हमेशा मुझे ये लगता था कि इसका मतलब शायद ये नेचुरल नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल है, ये ह्यूमन मेड एक कह सकते हैं कि इंसिडेंट। क्योंकि जो लोग एक कल्चर के पार्ट रहे हो, एक संस्कृति को साझा, तो वो अचानक एक दूसरे के दुश्मन। हालांकि वो सवाल मन में रहे, चलती रही। मैं फिर बाहर मूव किया आगे की पढ़ाई के, वहाँ पे और बहुत सारे कैंपेन्स और मूवमेंट्स, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहा सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे, तो मैं जुड़ता रहा आगे बहुत सारे आंदोलनों, कम्युनिटी वर्क किया, एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम किया, इंजीनियरिंग की। उसी समय फिर मिशन भारतीयम के, मिशन भारतीयम की स्थापना जब हुई थी, सुनामी आया हुआ। तो जो सुनामी आया था, सुनामी के बाद हमने मिशन भारतीयम की स्थापना करी। उसमें जो सुनामी विक्टिम्स थे, जो है हमने रिलीफ डोनेशन और ये सारी चीजें सब इकट्ठा करी शहर में। उसके बाद दोस्तों के साथ मिलके वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, और सवाल लगातार चलते रहे। तो सवाल बहुत सारे, मतलब सोशल डेवलपमेंटल इश्यूज भी रहे, ह्यूमन राइट्स के, पीस रिलेटेड इश्यूज रहे। करते करते फिर मैं जब दिल्ली पहुंचा, चूंकि दिल्ली को कहते हैं कि दिल्ली बड़ा पॉलिटिकली चार्ज्ड एक क्षेत्र है, तो दिल्ली पहुंचने के बाद तो एक और हवा मिल गई। जो मैं सोचता था वैसे मुझे बहुत सारे लोग मिले जो वैसे ही सोच रहे थे। और तब तक इतना हो चुका था कि इंटरनेट भी आपको आसानी से उपलब्ध था, तो आप जानकारियां। और मुंबई में जब बम ब्लास्ट हुआ तो फिर अचानक से जो पूरा माहौल था, आपको पता है कि वो तुरंत ही चेंज हो जाता है, वो जिंगोइज्म और सारी चीजें वो तुरंत हावी हो। तो वो जो बम ब्लास्ट हुआ तो हर कोई उससे बहुत हर्ट था, आहत था कि ये क्या हो गया, देश में एक टेररिस्ट अटैक हो। पर उस वक्त जो है पाकिस्तान से एक थिएटर ग्रुप है, तहरीके निस्वान। तहरीके निस्वान उस वक्त इंडिया आया हुआ था अपनी थिएटर परफॉर्मेंसेस के लिए। तो वो अलग अलग जगहों थे, लेकिन उसी समय ये घटना हो गई। और जब ये घटना हो गई, उनको ये हुआ कि अब उनको वापस जाना ही, तो उनकी सुरक्षा, परफॉर्मेंस वगैरह किसी शहर से खत्म करके वो दिल्ली पहुंचे। और मेरी कुछ लोगों के साथ उन लोगों से,
जिसमें कि शीमा किरमानी जी थी, अनवर जाफरी थे और उनकी टीम के तमाम और लोग। और जब ये मुलाकात होती है हमारी, हम उनसे बताते हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है तो इसमें आप लोग कैसे सोचते हैं, और उन्होंने भी उस ब्लास्ट को कंडेम किया। और चूंकि हम लोग एक्टिविज्म में थे तो हम लोगों ने प्लान किया कि एक हम ह्यूमन चेन फॉर्म करेंगे दिल्ली में, और हमने उनसे बोला कि क्या आप उस ह्यूमन चेन को ज्वाइन करोगे जो पीस के लिए, और जो ब्लास्ट विक्टिम्स हैं वो तुरंत तैयार हो गए। मतलब बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन्स, उनको बिल्कुल इस बात का ना तो उनको डर लगा कि वो कैसे ज्वाइन करेंगे, और ना तो उनके अंदर एक बार भी सवाल आया। उन्होंने कहा कि हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि हम भी इससे उतने ही। तो हमने एक ह्यूमन चेन फॉर्म करी दिल्ली में राजघाट पे। राजघाट पे वो ह्यूमन चेन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के सिटीजन्स की, जिसको लगभग सारी मीडिया ने कवर किया और उसकी खबर सब जगह गई, और उसमें जो नारे दिए गए, आतंकवाद हो बर्बाद, हिंद पाक दोस्ती जिंदाबाद, है ना, इस तरह के थे। और नारे कुछ हम लोगों ने भी लिखे थे कि ना रोक पाएंगे हमको ये बमों, इंसानियत के हम बढ़ते ही रहेंगे। तो बेसिकली जो एक उसका मैसेज था वो यही था कि भारत और पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो दरअसल ना तो वो किसी तरह की हिंसा को मानते हैं, ना वो किसी टेररिज्म या उसकी इस तरह की किसी एक्टिविटी का, वो आम लोग हैं जो शांति। तो ये घटना हुई, इस घटना ने भी मेरे मन पे एक छाप, और उसके बाद फिर मैं तमाम और एक्टिविज्म में लग गया और अपने साथियों से। तो मेरी एक साथी देविका है। देविका बेसिकली को फाउंडर भी हैं आगाज़े दोस्ती की। देविका से तमाम और कैंपेन और मूवमेंट्स में हम लोगों की मुलाकात होती रहती थी, और बहुत सारे मुद्दों पे उनके साथ डिस्कस लगातार हम लोग की बहुत देर तक और कई दिनों तक चर्चा की, ये भारत पाकिस्तान का जो इशू है। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसमें एक्चुअली एक बहुत बड़ा वॉइड है। वॉइड यह है कि जो हमको खबरें मिल रही हैं एक दूसरे के मुल्कों के बारे में, हमेशा हमको सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू मिल, वो मीडिया के थ्रू मिल रही हैं, या जो सोसाइटी ने एक परसेप्शन बनाया, हमें एक दूसरे से सीधे संवाद का कोई मौका नहीं मिल रहा है। जबकि हम दोनों का ये मानना था कि जब लाखों करोड़ों लोग यहाँ और वहाँ दोनों जगह रहते हैं और इतने सालों तक वो साहता हो ही नहीं सकता कि जो कि मतलब ये पूरी कहानी हो या सच्ची कहानी हो जो मीडिया हमको बता रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्या हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा मंच, ऐसा इनिशिएटिव तैयार कर सकते हैं जिसमें कि हम डायरेक्ट एक डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट कर पाएँ, और वो आम लोगों के बीच, हम पॉलिटिशियंस के बीच या सेलिब्रिटीज के बीच, तो हम आम लोगों के बीच। और आम लोगों में वो चूज किया कि हमारा जो मेजर फोकस होगा वो होगा स्कूल के बच्चे, क्योंकि हमारा ये मानना था कि या जिनके बारे में बात की जा रही है, आप क्या कभी उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं? जब इस तरह की बातें होंगी तब हो सकता है कि उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखे। अगर हम एक बच्चे तक भी पहुंच पाए और उसको हमने इस तरह से थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्म कर लिया कि वो आगे के लिए पीस का सपोर्टर बना, वो पीस मेकर बना, तो वही हमारे लिए एक सक्सेस हो। तो ये सोच के हमने आगाज़े दोस्ती, और आगाज़े दोस्ती की शुरुआत जो हुई तो बस वही है कि मतलब हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वो कारवां बनता गया। आगाज़े दोस्ती 13 साल से अधिक हो चुके हैं, सैकड़ों स्कूलों के साथ। मतलब हम चूंकि थोड़ा सा कमज़ोर हैं कि हम बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन आई थिंक मोर देन 100 स्कूल्स होंगे जिनके साथ हमने काम किया है, और कई हजार बच्चे होंगे जिनके साथ हमने काम किया है, जिन तक पहुंचे हैं, और जिन्होंने पीस को प्रोपगेट किया। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड था। और कैसे आगाज़े दोस्ती निकला, तो वो एक दिन में नहीं निकला। तो धीरे 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 एक समझ बनती गई, और भी इस तरह के लोग मिले तो साथ में। और जो कोलेबरेटर्स हैं, आगाज़े दोस्ती बेसिकली भारत में ही मिशन भारतीयम के एक प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने उसको शुरू किया, आगे बढ़ाया। और पाकिस्तान में हमको लाइक माइंडेड लोग जब भी मिलते गए तो हम वहाँ पे कभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और कभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी है तो आगाज़े दोस्ती के ही कोऑर्डिनेटर और वॉलंटियर रहे, जिन्होंने एज एन इनिशिएटिव उस काम को जारी रखा। इस तरह से वो कोलेब्रेशन आगे बढ़ता रहा। कोई फिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके साथ हमने कोलेबरेट किया। ये स्पेसिफिकली मतलब मैं अगर इसमें थोड़ी सी एडिशन करूं तो जितना ये नाम सुंदर है, जितना ये नाम खूबसूरत है, आगाज़े दोस्ती, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ
कि इसका काम और इसके जो इनिशिएटिव्स हैं वो कितने ज़बरदस्त होंगे, और स्पेसिफिकली द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट आई थिंक विच दिस आगाज़े दोस्ती कैरीज कि आप बच्चों को जो है वो पीस एजुकेशन दे रहे हैं. दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रियली नीडेड फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेजेस. बताइए कि जो पीस एजुकेशन है दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द नेशनल करिकुलम, ताकि जितने भी बच्चे आपके इनरोल हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा हासिल करें और उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव. या गाज़े दोस्ती को जब मैंने भी लिंक्डइन के भी ऊपर भी देखा, तो आई थॉट कि या आई मीन दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर माय सर्विसेज आर नीडेड बिकॉज आई एम आल्सो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी गाय. सो या दिस इज लाइक द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन डिलीवर. सो मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड था कि मैं कब पता नहीं मौका मिले तो ये पॉडकास्ट करें और ये सारी चीज़ें डिस्कस करें. बट या आई एम थैंक टू गॉड कि इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली एंड यू आर सिटिंग हियर टुडे एंड वी आर डिस्कसिंग. अच्छा रवि सर, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल इसमें ये होएगा, since you almost have covered the entire essence of the project, that how you started, how actually जिस तरह से आपकी एक्टिविज्म का स्टार्ट हुआ, एजुकेशन वाइज भी आपने सारा बताया कि किस तरह से डाइवर्सिटी है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी, और गाज़ी दोस्ती 2013 से आई थिंक कि आपने इसको स्टार्ट किया हुआ है. सो इट्स ऑलमोस्ट मोर ओवर देन अ डेकेड नाउ, राइट? ऑब्वियसली कोई भी सफ़र जो होता है वो बगैर कठिनाइयों के, बगैर मुश्किलात के अधूरा होता है. ये बताइएगा कि क्या ऐसे ऑब्स्टेकल्स रहे दैट यू फेस्ड इन योर जर्नी? कुछ विजिबल और इनविजिबल बैरियर्स भी हम देखते हैं कि एक शख्स जो होता है दैट एक्चुअली इज वर्किंग ऑन दैट मिशन वो फेस करता है, एंड यू फाइंड आउट दैट दे कुड बी लाइक पोटेंशियल बैरियर्स टुवर्ड्स द. अहमद, मुझे लगता है कि जो बैरियर्स मैं समझता हूँ या हम लोगों ने जो फेस किए, वो बेसिकली जनरल बैरियर्स हैं जो कोई भी इंसान जो पीस पे काम करेगा उसको मिलेंगे. जब हम पीस की बात, अभी हम पार्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान की पीस, तो वो जो बैरियर्स हैं वो कई तरह के हैं. सबसे पहला जो बैरियर है वो यही है कि भारत और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो वीज़ा एक दूसरे को आसानी से नहीं देते. पीस लाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोग मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हों, एक दूसरे को जान रहे हों, समझ रहे हों. फिर उसके बाद एक दूसरे के शिकवे, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ. अगर हम मिल ही नहीं पा रहे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि दूसरी तरफ चल क्या रहा है. जैसे गुलजार बोलते हैं ना कि आंखों को वीज़ा नहीं लगता और सपनों की कोई सरहद नहीं, है ना. तो वो जो बिल्कुल. बोलते हैं वो एक्चुअली वो बैरियर को ही बता रहे हैं कि इसका मतलब हमें वीज़ा लग रहा है और हमारे लिए सरहद है. तो ये जो पॉलिटिकल बैरियर है ये बहुत बड़ा बैरियर है. और साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जिसमें कि भारत और पाकिस्तान का जो मसला है वो इतना बड़ा है कि शायद वही रीजन है कि साउथ एशिया एज ए रीजन वो पूरा प्रॉस्पर नहीं कर पा रहा. जबकि ये ऐसा क्षेत्र है कि इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं पूरे दक्षिण एशिया में. तो जो पॉलिटिकल बैरियर है कि हमें वीज़ा नहीं मिलता, और भारत और पाकिस्तान ऐसे देश हैं कि उनके बीच टूरिस्ट वीज़ा नहीं. आपको एक 3-4 कैटेगरीज हैं वीज़ा की, कॉन्फ्रेंस कैटेगरी है या जर्नलिस्ट कैटेगरी है या स्पॉन्सर कैटेगरी है, वो उसके अंदर ही वीज़ा मिलेगा, आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलेगा. भारत और पाकिस्तान ऐसे देश हैं कि वीज़ा मिल तो आपको सिटी स्पेसिफिक वीज़ा मिलेगा. भारत का कोई भी इंसान पूरी दुनिया में जाएगा तो उस देश का वीज़ा होगा, उस देश में कहीं भी घूम. पाकिस्तान का कोई भी इंसान पूरी दुनिया में जाए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के लोग अगर एक दूसरे के मुल्क में जिस सिटी का वीज़ा है वो सिटी में ही घूम सकते. वैसे दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी कि आप सिर्फ सिटी तक ही जा सकते हैं. उनकी टेलीकॉम पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है. और भी जो कम्युनिकेशन के और मीडियम्स हैं, पहले लोग लेटर लिखा करते थे, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच पोस्टल सर्विसेज बंद है. आगाज़े दोस्ती ने भी जो है वो लेटर सीरीज स्टार्ट की थी. आगाज़े दोस्ती ने लेटर एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी कराए हैं स्कूलों के बीच, और हमने लेटर भेजे हैं पाकिस्तान में बाई पोस्ट. और डिलीवर हुए यहाँ पे? लेकिन आज की पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वो बंद हो चुकी है भारत और पाकिस्तान के. लेटेस्ट मतलब एक रिसेंट भी कराया था हमने एक लेटर एक्सचेंज प्रोग्राम 2 स्कूलों के बीच भारत और पाकिस्तान में. यहाँ हाथ से बच्चों ने उसको स्कैन किया गया, उसको ईमेल से वहां भेजा गया, वहां प्रिंट आउट निकाल के वहां के बच्चों को दिया गया, वहां के बच्चों ने उसका रिप्लाई लिखा, फिर उसको स्कैन किया गया, वो यहाँ आए, यहाँ प्रिंट आउट निकाल के यहाँ के बच्चों को दिया गया.
तो ये भी एक जैसे बैरियर है, और बैरियर के साथ आप फिर रास्ते भी निकाल रहे हैं कि आप उन चैलेंजेस को कैसे आप ओवरकम करेंगे, टेक्नोलॉजी या किसी और जो अन्य माध्यम है, लीगल माध्यम है। तो ये तो बैरियर ऐसा हो गया जो आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बैरियर हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो बैरियर हैं, और वो हैं सोशल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो मैंने पहले भी बताया। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सोसाइटी ने जो परसीव, तो जब आप काम करते हैं, जो कह सकते हैं कि एक पॉपुलर नैरेटिव जो है भारत और पाकिस्तान में लोगों का, आप उसके आप उसके अगेंस्ट हैं, तो हो सकता है आपको पॉपुलर सपोर्ट ना, ये एक बैरियर है। या कोई ऐसी घटना हो जाए जब पीस प्रोसेस, अभी तो सब कुछ चलो नॉर्मल चल, अगर कोई इंसिडेंट हो जाए उस समय वो तुरंत एकदम डिरेल हो जाता है, और उस वक्त सबसे पहले लोग क्वेश्चन आपसे, जो पीस पे काम, उनको ऐसा लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। और ये है कि पीस को जैसे बहुत कई बार ऐसे वीक देख, लोगों को लगता है कि पीस पे काम करना कोई ऐसे ये बहुत समझदारी का काम, या पीस इतनी पावरफुल चीज नहीं है, पीस स्ट्रांग नहीं है पीस पे काम करने के लिए, वीक देखा जाता है, फ्यूटाइल देख, उस पर कोई जरूरत नहीं है काम करने की। फिर यह है कि एक दूसरे के प्रति इतनी समझ नहीं है, तो इसलिए दोनों तरफ एक ये भी लोगों के अंदर भाव रहता है कि अगर आप अहमद आप काम कर रहे हो वहां पे पाकिस्तान में, तो वहां पे लोग आपको सोचेंगे कि अरे यार ये वन साइडेड पीस की, हम तो चाहते हैं पीस, वही नहीं चाहते हैं। हम यहाँ काम कर रहे हैं या अन्य यहाँ काम कर रही है, तो इनको लोग ऐसे बोलेंगे, इन्हें इस तरह बोलेंगे कि भाई पीस क्या, हम तो पीस ही, वो लोग नहीं चाह रहे पीस। तो कई बार उसको ऐसे देखा जाता है कि वो वन साइडेड, आप कि आप ही चाह रहे हैं पीस, दूसरा कोई नहीं चाह रहा है। तो इस तरह के ये जो बैरियर्स, बहुत सारे तरह के बैरियर्स हैं। थैंक यू सर। आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि विजिबल और इनविजिबल कुछ तो है जो स्टेट हम पे इम्पोज करती है, पर कुछ है जो हमारे दिमाग में है, उसके प्रति तो हमें खुद ही काम करना है, उसमें तो हम स्टेट को नहीं कोस सकते। इसके अलावा मुझे लगता है जैसे आपने भी एक तरह से बताया कि पहले वीज़ा मिलते थे, फिर अब नहीं मिलते, तो कुछ कुछ बदलाव आए हैं रिलेशंस में, चाहे अच्छे के लिए आए या बुरे के। तो आपने अपनी जर्नी में जो भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के, जैसे हम जैसे और स्टूडेंट्स हैं जो पीस के फील्ड में जो देखना चाहते हैं कि कुछ अच्छा बदलाव आए दोनों देशों के प्रति, तो आप देना चाहेंगे क्या फील्ड है जिसमें हम काम कर सकते हैं, चाहे छोटा ही कंट्रीब्यूशन हो या कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। देखिए, जब यूथ, सबसे पहली बात तो ये है कि यूथ को काम करना, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं इस पे काम करने वाले लोग, लेकिन ये इशू ऐसा है कि इस पे हजारों हजार लोग काम कर रहे हैं, और यूथ जो काम कर रहा है वो सोसाइटी के उसी परसेप्शन को, यूथ काम बेहतर ढंग से कर सकता है क्योंकि उसके पास आज तमाम रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसलिए वो कर सकता है। पहले के लोग शायद उतने बेहतर ढंग से उसको, उनके पास वो रिसोर्सेज। दूसरा ये है पीस, लोग जैसे पास कोड दे, मैं यूथ को पीस कोड देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये पीस कोड है, इसको आपको ध्यान रखना है। वो पीस कोड क्या, मैं बोलता हूँ पी से है प्रैक्टिकल, ई से है एथिकल, ए से है एक्शन ओरिएंटेड, सी से है क्रिटिकल थिंकिंग, और ई से है एम्पैथी। ये क्वालिटी अगर आपके काम में है, आप जो काम कर रहे हैं कमिटमेंट के साथ, कोई भी यूथ अगर पीस पे, और कोई जरूरी नहीं कि वो पीस सिर्फ भारत और पाकिस्तान की, पीस इन जनरल, अगर आप सिर्फ भारत या सिर्फ पाकिस्तान में भी काम पीस बिल्डिंग के लिए, तो भी आपको इस पीस कोड की। तो जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल होना है। पीस एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ आपको बहुत सारी, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको थ्योरीज भी उसमें मिलती हैं, लेकिन हमेशा आप काम करते समय ये ध्यान रखिए कि आप एक सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं, एक समाज में काम कर रहे हैं, जहां सिर्फ आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम, आइडियोलॉजी से आप गाइडलाइन लीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल तरीके से आगे। जब हम एथिकल की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि पीस पे कोई भी यूथ जो काम कर रहा हो, उसको एक एथिक्स का पता, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई और मुल्क हो, उसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी का और अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया है, वो हमने ये देखा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें
दूसरा अपनी पर्सनल सेफ्टी का, कि ये जो मुल्क हैं, इन मुल्कों के बीच जो बैरियर्स हैं वो बैरियर्स रियल हैं, और उन बैरियर्स में दोनों मुल्कों के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, दोनों मुल्कों की अपनी स्ट्रेटजीज। तो ऐसा ना हो कि आप पीस का काम कर रहे हो और आप उसको कहीं वायलेट कर जाएं, या आप जो लीगल तरीके हैं उससे हटके से, फॉर एग्जांपल, कि मैंने कुछ लोगों को ये सुना कभी कि भाई स्पॉन्सरशिप दे दीजिए आप हमें आने के। स्पॉन्सरशिप देना गलत नहीं है, लेकिन आप क्या उस व्यक्ति को ठीक से जानते हैं? क्या आप उसके बैकग्राउंड से परिचित? क्या वो आपका रिलेटिव है तो आप दीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ये कर रहे हो और कल को कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए। आपको इन सब चीजों के बारे में, ठीक है, या आप किसी से बात कर रहे हैं फोन पे, तो आपको किस तरह से बात करनी है, क्या बात करनी है। आप ऐसा तो नहीं कि आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच बात कर रहे हैं और आप कुछ इश्यूज का मजाक उड़ा रहे हैं, या एक दूसरे की कंट्री का भले ही आप बातचीत, लेकिन इस तरह की चीजों को हमेशा, क्योंकि एक सीरियस काम है, तो जितना सीरियस ये इशू है आपको उतने सीरियस संजीदा तरीके से काम करिए, ताकि आपकी सोसाइटी को, आपके गवर्नमेंट्स, आपके किसी भी इस तरह के जो लोग हैं, या आपका जो लीगल फ्रेमवर्क है दोनों कंट्रीज का, उसको कहीं आप वायलेट ना कर रहे हो। ये तो हुआ प्रैक्टिकल और एथिकल की बात। दूसरा है एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। जब एक्शन ओरिएंटेड होने का तो इसका मतलब यह है कि आपका काम रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए। कोई इवेंट हो गया और आप उस पर रिएक्शन देने लग गए फटाफट। तो आपका काम ऐसा है कि आपको मुश्किलें, कुछ होगा तो लोग आपसे सवाल करेंगे, लेकिन आपको ऐसे परेशान नहीं, आपको अपने अंदर पेशेंस बनाए रखना है। कोई बात नहीं, आपका काम स्लो है, वो ग्रेजुअल है, वो एक पूरा जर्नी है, एक प्रोसेस है, वो धीरे धीरे, आप एक दिन में कोई बदलाव, और इसलिए किसी एक दिन के पीस प्रोसेस के, आपका एक काम है वो लंबा है, वो ऐसे ही चले। जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, ये है कि आपको जो भी इश्यूज हैं उसको आपको 360 डिग्री में देखकर, किसी भी इशू के बारे में जो भी आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज आपकी सिचुएटेड है। सिचुएटेड का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास नॉलेज है वो 360 डिग्री वाली, वो 100% वाली नॉलेज नहीं। वो नॉलेज आपको इसलिए है कि वो नॉलेज आपको सोसाइटी ने, या आप किसी खास रिलीजन के हैं, या कास्ट के, या रीजन के हैं, या नेशनलिटी के हैं, इसलिए आपके पास वो नॉलेज है। हो सकता है कि वही सेम इशू की जो दूसरा आदमी, जो दूसरा कोई व्यक्ति जो किसी दूसरी नेशनलिटी का है, दूसरे रिलीजन का है, दूसरे रीजन का है, कास्ट का है, दूसरे जेंडर का है, या दूसरे टाइम जोन में बैठा हुआ है, उसी इश्यूज का उसका एक दूसरा नेरेटिव है। तो यहाँ पे मल्टीपल नेरेटिव्स हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने नेरेटिव बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं होना है। आपको हर एक नेरेटिव पता, आपको उस नेरेटिव को देखना है कि भाई मैं ऐसे सोच रहा हूं, लेकिन क्या सब लोग ऐसे सोचते हैं, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स कौन है। तो इस तरह से आपको एक अपना नैरेटिव बिल्ड करना है, तब जाके उस पर आपको कोई बात कहनी। और जब एम्पैथी की बात कर रहे हैं तो ये पीस है, और जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे विक्टिम्स हैं। जैसे फ्रंट लाइन विक्टिम्स कौन है? फ्रंट लाइन विक्टिम्स हैं सोल्जर्स, जो फौजी, वो फौजी भारत का हो या फौजी पाकिस्तान का हो, है तो इंसान, वो गोली भले एक दूसरे को, लेकिन वो विक्टिम है, वो इस कॉन्फ्लिक्ट के victim। तो जब भी आप बात करें, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, आपके अंदर उनके प्रति एक संवेदनशीलता, एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे फौजी की, या कोई और किसी और की डेथ हुई और जो है आप तुरंत ही उसके सामने पीस की, ये भी एम्पैथी नहीं है। आपको वहां पे सेंसिटिव होना है, आपको समझना है कि इस वक्त माहौल दूसरा है, इस वक्त आदमी दूसरे एक इमोशनल स्टेट में है। तो इसलिए आपको हर एक जो कॉन्फ्लिक्ट के बिना, और आपका जो पीस इनिशिएटिव हो, या जो आप पीस प्रोसेस को बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट के विक्टिम्स आपके कम होते जाएं, और आपका जो पीस का दायरा है वो बढ़ता जाए, और किसी भी विक्टिम को आप हर्ट ना कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें हमेशा यूथ को ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल जैसे हम स्कूल में मैथ्स के फॉर्मूला याद करते हैं वैसे ही आपने पीस का भी एक फॉर्मूला सा दे दिया है, जो आई थिंक काफ़ी आसान रहेगा हमें याद करने के लिए, कि कुछ कुछ वैल्यूज़ जो हमें पता होनी चाहिए, और कि कैसे पीस के लिए काम कर रहे हैं तो हमें स्टेट के
फंक्शंस के अंदर ही काम करना है, थोड़ी लीगैलिटीज को भी देखना है, ऐसे नहीं कि भावनाओं में बहना है। तो आई थिंक काफी हमें सीखने को मिला। एंड आई थिंक हमने पास्ट की काफी बात कर लिया, अब अगर अहमद थोड़ा हमें फ्यूचर के हिसाब से हमारी कन्वर्सेशन लेके जा सके। I mean, मुझे खुद भी पीस कोड जो आपने दिया, इट्स सच अ नाइस टूल किट टू इम्प्लीमेंट स्पेशली फॉर पीस बिल्डर्स एंड प्रैक्टिशनर्स इन देयर लाइव्स एज वेल व्हेनेवर यू डू या अंडरटेक सम पीस प्रोजेक्ट्स के ऊपर। हमारे जो अपने फाउंडर थे, मुझे उनकी बुक का नाम विच वाज प्रोफेसर युहान गौतम, उनने किताब लिखी थी पीस बाय पीसफुल मीन्स, ओके। इस तरीके से आ रहा है। सो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। आई थिंक हम थोड़ा सा माजी के बारे में, देयर दिस वन फेमस कोटेशन, कहा जाता है कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। नाउ जिस तरह से हम देखते हैं कि मोर देन 75 years हैव बीन पास्ड सिंस बोथ ऑफ द कंट्रीज गेन्ड इंडिपेंडेंस। उससे पहले अपना लिविंग टुगेदर वाला रिलेशन देखें दोनों कंट्रीज। आप क्या सर समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया, चूंकि इन द नेक्स्ट 20 to 25 years both of the countries will be celebrating 100 century or 100 years celebration of their independence, right? So जब 100 years का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे, सो डू यू थिंक सो कि दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन एज ऑफ नाउ, या एज जिस तरह से हम हिस्ट्री में रहेंगे? फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? इज इट समथिंग वेरी ब्राइट, थोड़ा सा बिटर स्वीट देखते हैं, या बीइंग अ पीस बिल्डर योरसेल्फ, आपका क्या है इस पे, कि होपफुल हैं, थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? रियली वांट टू नो दैट। नहीं, देखिए, ये तो प्रेडिक्ट करना तो थोड़ा सा ऐसे, लेकिन यह है कि एज ए पीस बिल्डर तो हम लोग हमेशा होपफुल रहेंगे कि मतलब पीस तो आना है। वह है कि हजार बरस गिरे लाख आंधियां चलें, मगर वो फूल खिल के रहेंगे। तो हम तो वही सोचते हैं कि भाई पीस आएगा, और अल्टीमेटली कोई और सोल्यूशन, मतलब आप कोई भी स्टेट टू स्टेट, या कोई भी दो रीजन, या कोई भी दो कंट्री या नेशनलिटीज हमेशा युद्ध की स्थिति में, या युद्ध जैसी, और जो युद्ध भी होते हैं उनके पीछे जो कारण है वो पीस ही है। अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि ये हो, खत्म हो और पीस हो जाए। तो इसका मतलब कि चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे वो सिविल सोसाइटी सोच रही हो, स्टेट सोच रहा हो, कोई भी सोच रहा हो, सबका जो मेन एम है वो पीस की। सबके तरीके अलग अलग, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है कि 30-40 साल बाद, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, एक तो आपने इसमें इंडिपेंडेंस, उसमें भी एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। किसी देश के लिए, ये जो आपने कहा बिल्कुल सही बात कही है, किसी देश के लिए 60-70 साल, 100 साल देश की उम्र के लिए ये बहुत कम साल है। तो इसलिए बिल्कुल, ये आपने फैक्ट भी कहा कि जो हिस्ट्री है हमारी, जो हजारों साल साथ रहे, क्या वो कमजोर है कि हम अभी कॉन्फ्लिक्ट में हैं? उसमें तो हम पीस के साथ रह रहे थे एक कल्चर में। जो इंडिपेंडेंस का जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल था, वो फ्रीडम स्ट्रगल हमने साथ में लड़ा है। वो उस समय तो लोग एक थे, वो साथ में फ्रीडम स्ट्रगल के साथ में जो हीरोज हैं, वो पता चला लाहौर की धरती से मूवमेंट चल रहा था। भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे अशफाक उल्लाह खां थे, ये लोग आते जाते थे, और ये वहां से एक फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब 100 साल पूरे हो रहे हो, इंडिया, भारत और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि वो सबसे पहले तो आप मतलब ये डिसाइड करें कि भाई उन्होंने जो पीछे गलतियां करी हैं, या एक दूसरे के साथ जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको वो, दूसरा हमारे शेयर्ड हीरोज हैं, वो दोनों ज्वाइंटली उनको रिस्पेक्ट करें, रिकॉग्नाइज करें, उनको लेके कुछ प्रोग्राम्स करें, ताकि दोनों तरफ, देखिए ये ऐसी चीज होती है, दोनों तरफ के लोगों में फिर बहुत बड़ा मैसेज है। अगर कोई दो कंट्री मिलके भगत सिंह को सेलिब्रेट कर रही है कि भाई ये तो वो हैं जिन्होंने आजादी, वो भगत सिंह तो पहले ही बेचारे शहीद हो, उनको तो पता भी नहीं रहा होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे। वो तो एक उन पूरे लोगों, जो किया वो उन पूरे लोगों के लिए, उनको नहीं मतलब कि लाहौर में कौन रहता था, कराची में कौन रहता था, हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे, हम तो जी यहाँ के लिए लड़ेंगे या दिल्ली के नहीं लड़े। भाई उन्होंने तो पूरे उस रीजन के लिए शहीद हुए। उनको ये पता होता कि बाद में ऐसे हो जाएंगे ये लोग, इतने आपस में झगड़े करेंगे, हैं उस समय वो डांट रहे होते लोगों को। मतलब ये तो खैर मजाक की।
मतलब ये एक बहुत सीरियस बात है कि हमारी सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। जो साझी शहादत है, जिसको हम लोग कहते हैं कि साझी शहादत, तो ये दोनों चीज़ों को जो शेयर्ड हैं उनको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमारा, क्योंकि फ्यूचर भी हमारा शेयर्ड ही है, जो हमारी हिस्ट्री शेयर्ड है, हमारी शहादत शेयर्ड है, हमारी हेरिटेज शेयर्ड है, हमारा फ्यूचर भी शेयर्ड है। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं और वो चीज़ कभी खत्म नहीं हो सकती, वो पड़ोसी ही रहेंगे। चूंकि अब जो समय आज का चल रहा है, वर्ल्ड जो है वो बहुत मल्टीलेटरल है, मल्टीपोलर है। वो ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री है वो बिल्कुल ऐसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि उसको किसी दूसरी कंट्री से, आज सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत कोहेसिव तरीके से एक दूसरे के साथ। और जो हमारा रीजन है दक्षिण एशिया, जो है साउथ एशिया, साउथ एशिया आप देखेंगे तो साउथ एशिया, यहाँ 1/3 से अधिक दुनिया की पॉपुलेशन रहती है और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ है। लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा यहाँ बोली जा रही हैं, सबसे ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पे है, रिलीजियस डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस, घूमने फिरने के लिए टूरिज्म की जगह देखेंगे तो सबसे ज्यादा हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज्यादा हैं। तो क्या इस रीजन को, जिसके अंदर इतना ज्यादा ये प्रॉस्पर, सारी कंट्रीज आसपास की साउथ एशिया की कंट्रीज, क्या हम सब मिलके इस रीजन को इतना प्रॉस्पर, क्या हम एक दूसरे के साथ इस एनिमिटी में, इस कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेंगे, या हम सच में सोचेंगे कि हम इस रीजन को आगे बढ़ा। और जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जो जमाना है वो है टेक्नोलॉजी, और जब आप टेक्नोलॉजी की, ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से, मैंने आपको बताया कि जब मैं 99 में कारगिल के बारे में, गूगल और इंटरनेट की सुविधाएं, मैं एक छोटे शहर में रहता था, बड़े शहरों में लेकिन मेरे पास नहीं थी, मैं जानता भी नहीं था ईमेल या गूगल, लेकिन आज के दौर में बच्चा बच्चा जानता है। और इंटरनेट नहीं, अब वो और आगे बढ़ चुके हैं, वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कहा जा रहा है कि 5 साल बाद आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही आउटडेटेड हो जाएगा, सोसाइटी बहुत इससे आगे चली जाएगी। तो जब इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही हैं, तो क्या ये एडवांसमेंट हमारे लिए थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज जो दोनों ला रही हैं, उसमें पीस मेकर्स का काम ये होना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटीज को कैच करें। क्या हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे आप लोग कर रहे हैं, आपने पॉडकास्ट सीरीज शुरू करी, तो उसमें आप बैठे बैठे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से आप किसी को बुला सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप लोगों को जोड़ सकते हैं, आप पीस प्रोपोगेट कर सकते हैं। आगाज़ दोस्ती ने भी एक लेक्चर सीरीज शुरू करी जिसमें हम लोग ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे बुलाया, पीस जर्नलिज्म पे बुलाया। तो इस तरह से ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, पीस मेकर्स को इसका सहारा लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी की बात करें। दूसरा, जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है उस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, हर कंट्री चाहती है कि उसका जीडीपी आगे बढ़े, उसकी इकोनॉमी आगे बढ़े, उसके लिए वो डेवलपमेंट करती है। जब डेवलपमेंट करती है तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी करती है, एक्सप्लॉइट भी करती है। और जब वो नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करती है, में क्लाइमेट पे, क्लाइमेट चेंज पे आप भी काम, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हम तो जानते हैं कि हमको पता है कि भाई हम यहाँ से जाएंगे, हम बाघा से आगे नहीं बढ़ते, लेकिन वो बादल को नहीं पता, वो नेचर को नहीं पता है। क्लाउड बर्स्ट होगा वो दोनों तरफ होगा, फ्लैश फ्लड्स आएंगे वो दोनों तरफ आएंगे, सूखा पड़ेगा वो दोनों तरफ पड़ेगा, स्मोक होगा दोनों तरफ होगा, पॉल्यूशन होगा दोनों तरफ होगा। तो हम, नेचर जो कर रहा है वो अपनी बाउंड्री डिसाइड नहीं करेगा हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज की वजह से। तो अगर हम ये समझें कि हम एक खास पॉलिटिकल बाउंड्री में हैं और हमें कुछ नहीं होगा, कि दुनिया को सब कुछ होगा, इसलिए भी जरूरी है कि हर कंट्री मिल के, और क्लाइमेट चेंज की तरफ या इस तरह के जो भी खतरे हैं, मैंने बताया कि मैं सुनामी पे हमने बहुत पहले काम किया था। तो जब काम किया, अभी तक ध्यान है, उस समय पता लगा कि शायद उस समय हमारे पास अर्ली अलार्म वार्निंग सिस्टम, अगर वो होता तो शायद लोगों को पहले ही पता लग जाता, गवर्नमेंट्स को, कि भाई कोई इतनी तेज वेव्स आने वाली हैं और कुछ रेस्क्यू अब होने लग गया है, अब होने। तो ये टेक्नोलॉजी का फर्क, कंट्रीज मिलके क्या क्या, तो मुझे लगता है कि इन सब तरीकों से जो फ्यूचर है वो मेरे हिसाब से तो होपफुल है और उन्हें करना चाहिए।
जो पीस मेकर्स हैं, पीस मेकर्स को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब वे फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों आएंगे। उन दोनों में से उनको अपॉर्चुनिटीज को चूज करना है और अपॉर्चुनिटीज को, पीस को प्रोपोगेट कर। दुनिया में जो बड़े खतरे हैं वो खतरे यही हैं। एक तो डिजास्टर्स बाउंड्री की तरह काम करें, हमें एक दूसरे की तरफ आने जाने हर चीज की इजाजत हो, क्योंकि जो इंसान पैदा हो रहा है धरती पे, अगर उसका नेचुरल राइट देखेंगे तो वो धरती पे कहीं भी जा सकता है, ये उसका नेचुरल राइट है। लेकिन ये गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं जिन्होंने ये सरहदें बना दी, तो हमारे नेचुरल राइट्स हमको मिल पाए, हम आ जा सकें कहीं भी। और जो स्टेट टू स्टेट है वो ऐसी सुविधाएं अपने नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ऐसी सुविधाएं बना पाए। जैसे पीस कॉरिडोर्स हैं, करतारपुर कॉरिडोर भारत पाकिस्तान के सहयोग से ही ओपन हुआ, तो वो कितनी अच्छी बात है। मैं तो गया हूँ उस पर, बिना वीज़ा के आप करतारपुर जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं। हालांकि अभी बंद है, आफ्टर पहलगाम इट इज़ क्लोज्ड, बट आई एम वेरी होपफुल कि जो है ये फिर ओपन हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों देश एक साथ आएंगे। और सिर्फ करतारपुर ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि इस तरह के बहुत सारे कॉरिडोर्स ओपन होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में शारदा टेम्पल का कॉरिडोर ओपन होना चाहिए। वहाँ पे चूंकि वो टेम्पल के लिए बहुत डिमांड है, बहुत सालों से डिमांड है, लोग चाहते हैं कि उसके लिए भी एक कॉरिडोर ओपन हो जाए। तो जो लोग जाना चाहते हैं उनको आने जाने में जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस वीज़ा, पिलग्रिम वीज़ा है, पिलग्रिम वीज़ा अधिक से अधिक दिया जाए। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में जो यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया आना चाहते हैं, जो अजमेर की दरगाह शरीफ पे आना चाहते हैं। बहुत सारे हिंदूज हैं जो कटासराज टेम्पल जाना चाहते हैं, जो शारदा पीठ जाना। बहुत सारे सिख हैं जो ननकाना साहिब जाना चाहते हैं। वहाँ के भी बहुत सारे सिख होंगे जो यहाँ आना चाहते हैं। पे बहुत सारे गुरुद्वारे बने हुए, गोल्डन टेम्पल पे। इवन मैं एक बार पाकिस्तान गया और वहाँ पे मैं होटल में ठहरा हुआ था, और जो सर्व कर रहे थे, मैंने ऐसे बात करी उनसे, उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया कैसा है, ये वो। मैंने कहा कि इंडिया के बारे में सुना है। वो कह रहे मैं तो ताजमहल खूब जाना चाहता हूँ, मुझे पता है यहाँ से पास में है लेकिन मैं जा नहीं सकता। तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे लगता है ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए। इवन टूरिस्ट वीज़ा भी शुरू होना चाहिए। भारत पाकिस्तान क्यों ऐसे एक्सेप्शन बने हुए हैं पूरी दुनिया में? टूरिस्ट वीज़ा करें आप, सिक्योरिटी चेक करें आप, सारी चीज़ें करें। दोस्ती बस चली थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई, अब दोस्ती बस बंद हो चुकी है, वो चले। समझौता एक्सप्रेस चली थी। मतलब कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो चलते हैं और बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो प्रोसेस चलते होने चाहिए और उससे और ज़्यादा भी चलते होने चाहिए। इस तरह की और जो सर्विसेज हैं वो शुरू होनी चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे से मिलजुल सकें। हमारे एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। आप देखें कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी हैं उनके बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलेब्रेशंस हैं जो बाहर जाके एक दूसरे के यहाँ, लेकिन भारत और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में किसी तरह का कोलेब्रेशन या इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं। तो वो होने चाहिए, एजुकेशनल एक्सचेंज होने। भाई दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, साइंटिस्ट हैं, टीवी मीडिया इंडस्ट्री है, ये सारी यहाँ पे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं। अगर हम उनको मौका दें तो वो एक साथ मिलकर बहुत कुछ, मुझे लगता है इस बारे में सोच। आपने काफी काफी सारे एरियाज बता दिए। अब हम भी चाहेंगे कि अगले 20-25 साल में इन सब एरियाज में काम हो, और खासकर जो आपने यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन का बोला, जैसे मैं एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ तो मैं चाहूंगी कि जो हमारी हड़प्पन साइट्स हैं जो इंडिया में है, पाकिस्तान में, उस पे कुछ जॉइंट रिसर्च हो, क्योंकि है बिल्कुल तो एक ही सभ्यता का पार्ट, पर हम बिल्कुल। जा ही नहीं सकते वहाँ। तो होपफुली फ्यूचर में हमें कुछ उस डायरेक्शन में भी काम दिखे। 50 मिनट में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, तो हम उसको समराइज करना चाहते हैं एक रैपिड फायर राउंड से। तो पहले मैं अपने कुछ सवाल पूछूंगी, फिर अहमद पूछेंगे। तो इसका बस एक रूल है कि आपको कम से कम शब्दों में इनके जवाब देने हैं, और जो आपके दिमाग में सबसे पहला है वो आपको जवाब देना कुछ जगह मैं डिफर कर सकता हूँ। है। ठीक है, कुछ नहीं होता। तो पहला सवाल थोड़ा आपकी पोएट्री बैकग्राउंड से रिलेटेड। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक पोएट को चूज कर सकें जिनकी पोएट्री आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप किस पर्सनालिटी को चूज करेंगे? मैं नहीं देखता पोएट्स को अलग अलग बाउंड्रीज में, लेकिन फिर भी फैज अहमद फैज और अली सरदार जाफरी। ओके। अगर आप पाकिस्तान में एक शहर में तो आप कौन सा शहर चूज करेंगे? थोड़े थोड़े दिन बहुत सारे शहरों में, क्योंकि ओके। मैं वहाँ के कल्चर को जानना चाहता हूँ और ज़्यादा। ओके। एक पीस एक्टिविस्ट का नाम लीजिए जिनके काम से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली है। वो भी एक नहीं ले सकते। एडमिरल रामदास यहाँ से, आइए रहमान वहाँ से, आसमा जहांगीर वहाँ से, कमला बसीन यहाँ से,
सत्यपाल और कुलदीप नैयर यहाँ से, और करामत अली वहाँ से, इस तरह बहुत सारे लोग, निर्मला देश पांडे यहाँ से, मुबशिर हसन वहाँ से। और मेरा आखिरी सवाल कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का फ्यूचर 3 एडजेक्टिव्स में, तो आप कौन से 3 शब्द चूज करना चाहें? अ, मैं बोलता हूँ हमेशा ये आगाज़ दोस्ती में मैं कि हमारा फ्यूचर हो हिंसा मुक्त, नफरत मुक्त और हथियार मुक्त। थैंक यू। आई थिंक आपने ये काफी अच्छे आंसर दिए बाउंड्रीज को ना फोकस में रख के, जबकि मेरे क्वेश्चन बाउंड्रीज पे थे, तो काफी इंटरेस्टिंग जवाब मिले हमें। अब अहमद, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी थोड़ी सी कि आपको बाउंड्रीज में जकड़ लूं, लेकिन तो मेरा पहला आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट वाज लाइक द फर्स्ट मेमोरी। जो मुझे याद है वो वही है जो मैंने आपको अपने उसमें भी बताया, वो शीमा किरमानी जी के साथ मेरी मुलाकात, जब हमने साथ में इंडो पाक ह्यूमन चेन को फॉर्म किया था, और वो काफ़ी मेरे अंदर गहरा असर छोड़ा। शायद जब हमने क्लासरूम कनेक्ट प्रोग्राम्स किए, जो बच्चों की मुस्कुराहट थी, उसमें एक वाकया याद आता है, मैं आपको बताऊंगा, हालांकि ये रैपिड फायर से चेंज हो रहा है। हमने क्लासरूम कनेक्ट किया तो एक बच्ची का बर्थडे था, और हमने दूसरी तरफ जो है वो बता दिया कि उसका बर्थडे है, तो वहाँ पे बच्चे खाली उसको हैप्पी बर्थडे। और जब वो सेशन शुरू हुआ, में उन लोगों ने केक लाके उसका केक काट दिया, मतलब वाह। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की बच्ची के लिए, और वो रोने लग गई यहाँ पे वो खुशी के मारे। तो वो ओह एक वाह। काफी वैसा मोमेंट था कि हम सब लोग काफी इमोशनल हो। आई थिंक सच अ साइट टू वॉच। कितना लवली हुआ हुआ हुआ। ओके, बढ़ते हैं तीसरे सवाल की। बताएगा कि अगर आपके पास वक्त बहुत कम है, आई मीन यू गॉट 30 सेकेंड्स टू स्पीक अ क्लासरूम इन लाहौर या दिल्ली, दोनों में से कोई भी, क्या कहना चाहेंगे उस क्लासरूम से 30 सेकेंड्स के अंदर? मैं उनको कोई गाना गवाऊंगा, कोई गीत, जो जन गीत होते हैं शांति के, जैसे आप भी गा सकते हैं मेरे साथ। जी जी जय जरूर। जगत, जय जगत, जय जगत जय पुकारे जगत। जा, जय जगत, सर अमन पे वारे जा, सर अमन पे वारे जा, सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते, अपना सुख बिसारे जा, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा। अब लाहौर और दिल्ली दोनों के लिए गाना जो है वो गुनगुनाएंगे। ओके, सो ये बताएं कि अ फेलियर विच taught you more than a success. ये कह सकते हैं आगाज़ दोस्ती के काम में फंडिंग या स्पॉन्सरशिप का रहा, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे होते हैं कि लोग आपको इस तरह से सपोर्ट नहीं करते उतना, स्पॉन्सरशिप देके या फंड्स दे। लेकिन वो हमारे लिए सक्सेस स्टोरी बन गई, क्योंकि फिर हमने अपने प्रोग्राम्स को इस तरह फॉर्म कर दिया कि आगाज़ दोस्ती आज की डेट में 13 साल से चल रहा है, लेकिन वो फुल्ली वॉलंटरी इनिशिएटिव है। में जितने भी लोगों ने काम किया है वो कम्प्लीटली एकदम वॉलंटरी स्पिरिट के साथ काम किया है, और अब हमारा ये रूल बन गया है कि हम किसी वॉलंटियर को, ना हम खुद उसमें से पेड होंगे, ना हम किसी को पे करेंगे। जो भी काम करेगा वो कंप्लीट वॉलंटरी मॉडल पे काम करेगा, जितने दिन काम करना चाहे उतने दिन काम करेगा। और जो हमारे प्रोग्राम्स भी डिजाइन होंगे वो मिनिमम कॉस्ट पे डिजाइन होंगे। वो कई ऐसे प्रोग्राम है जिसमें तो जीरो कॉस्ट पे डिजाइन है। इवन आप कैलेंडर्स भी देखते होंगे, कैलेंडर की सिर्फ प्रिंटिंग की कॉस्ट हमारी लगती है, और वो भी कॉस्ट हम लोग, जो लोग उसको ले रहे होते हैं उनसे ले लेते हैं। कैलेंडर की डिजाइन फ्री, कैलेंडर का एडिटिंग फ्री, जो भी वॉलंटियर हैं वो सब वो लोग। Such a nice model that you have built up from आगाज़े दोस्ती, और वो भी वॉलंटरी बेसिस के ऊपर। अमेजिंग। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। नौजवानों के लिए सख्त वक्त का इम्तिहान आ चुका है। एक ऐसा चैलेंज जो आप चाहेंगे कि यंगस्टर्स जो हैं दे कैन सॉल्व इन द नेक्स्ट ईयर, क्या एक चैलेंज हो सकता है उनके लिए? मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके इसके मैसेज को कितने अधिक लोगों तक यंगस्टर, क्योंकि पीस प्रोपोगेट बहुत धीरे धीरे, लेकिन चूंकि आज उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो कितने हजार या कितने लाख या कितने करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये उनके लिए एक चैलेंज है जिसे उन्हें पूरा करना ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच आन्या। थैंक यू सो मच सर। है। अब थैंक हम यू। अपने डिस्कशन के एंड, मेरे को पता है काफी सारी बातें हैं जो हम और कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम रुकेंगे क्योंकि हमने काफी मेन मेन चीजें बात। एंड बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी पूरी जर्नी उत्तर प्रदेश से शुरू होके, और अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो इंटरनेशनली काम नर्स को भी तरीके और रास्ते बताए जिससे वो फ्यूचर में काम कर सके। एंड हमारे पॉडकास्ट का यही पर्पस था कि हम उन
पर्सनालिटीज़ को बुलाएं, जिनकी बातें, जिनके एक्सपीरियंस सुन के, और जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं उनको इंस्पिरेशन मिले, उनको एक रास्ता मिले। क्योंकि जब हम अपने टीवी पे न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग या काफ़ी होपलेस सिचुएशन हमें लगती है, तो ऐसे माहौल में हम एक होपफुल कन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं, और आई थिंक आज की कन्वर्सेशन उस कैटेगरी में जाएगी। एंड हम मतलब आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहेंगे, मैं और अहमद दोनों, कि आपने टाइम निकाला हमारे साथ बात करने के लिए। एंड हमारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आपके साथ हमें मौका मिला इतनी लंबी कन्वर्सेशन करने का, क्योंकि हम दोनों साइड बाय साइड लिखे भी जा रहे थे कि क्या क्या हमें सीखने को मिल रहा है, खासकर जो आपने पीस का फॉर्मूला दिया। आई थिंक आज का कन्वर्सेशन सच में काफ़ी अच्छा था, जिससे हम लोग डेफिनेटली हम फ्यूचर में लर्निंग्स याद रखेंगे और इसको अपने साथ रखें। I think just I definitely also echo Anya's thoughts, which he just has shared. Ke even though I feel like it is just the start, but the future I am visualizing out of this podcast or this project is very much optimistic. और पीस बिल्डर के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसने मुश्किल में से उम्मीद को निकाल के लाना हो, फोर्सिंग फॉर द फ्यूचर एज वेल। एंड सर, वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी इंगेजिंग कॉन्वर्सेशन हुई, स्पेसिफिकली जैसे पीस कोड की आन्या ने बात की। दिस इज समथिंग विच कैन बी वर्क एज अ प्रैक्टिशनर टूल किट फॉर द पीस बिल्डर्स, क्योंकि कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होती हैं या मॉरल कंपस आपके पास होना चाहिए व्हेन यू स्टेप इनटू द फील्ड, सो दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। आगाज़ दोस्ती के बारे में जान के आई डेफिनेटली आल्सो वांट टू वॉलंटियर इन एनी कैपेसिटी आई कैन फॉर द इनिशिएटिव फॉर व्हाट एवर वर्क यू आर डूइंग। जैसे आपने बात की है, कम्प्लीटली वॉलंटियर है। और उसके अलावा आपका जर्नी, जो पर्सनल जर्नी था, जो पर्सनल चैलेंजेस आपने फेस किए, एंड स्टिल यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, बहुत अच्छा लगा। और हमारी यही काविश थी, कोशिश यही थी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बनाएं जहाँ पे आप जैसे लोगों को बुलाएं, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस को सुने, और फिर उस बेसिस के ऊपर वी कैन ऑल्सो डू समथिंग। सो या, दिस इज ऑल। Just before we conclude this, one last minute advice you want to give, not only to the youngsters, not only to India, Pakistan, but to the across the whole globe, जो भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। Yeah, love to hear that. तो मैं एडवाइस नहीं, मैं अली सरदार जाफरी की 4 लाइनें बोल दूंगा। वही Sure, एडवाइस है कि जरूर। करें ये अहद की औजारे जंग जितने हैं, उन्हें मिटाना है और खाक में मिलाना है। और करें ये अहद की अरबाबे जंग हैं जितने, उन्हें इंसानियत और शराफत सिखाना है। तो थैंक यू वेरी मच अहमद एंड आन्या एंड पीस बियॉन्ड बॉर्डर्स। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, और मैं भी काफ़ी इंस्पायर हो रहा हूँ आप लोगों को देख के, और काफ़ी होपफुल हूँ कि जो है ऐसे बहुत सारे लोग, मैं चाहता हूँ हज़ारों यूथ इस तरह के काम कर रहे हों, पीस पे काम कर रहे हों, और आप इस मैसेजेस को विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से और आपस में जुड़ जुड़ के जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए उतना ही ज़रूरी। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। इट वॉज रियली मीटिंग यू, लिसनिंग टू यू, या इंटरेक्टिंग विद यू अबाउट द कॉन्वर्सेशन। या, सो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। So see you guys in the next episode फिर। Take care.